So, dear brothers, praise the Lord on this Sunday morning. Welcome to all the people who are on Zoom also. So, we will worship and praise the Lord and share the word of God. So, after that, we have time of sharing also with dear brother Swami and dear brothers who want to come, sisters who want to come and share. So we were talking last week on the matter of suffering for Christians. तो हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे इस बारे में जो मसीह हैं उनके दुख उठाने के विषय में. So we see in 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7. पहला पत्रस पहला अध्याय 6 और 7 वचन. Says, in this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials. The proof of your faith being much more precious than gold which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in the praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा बरखा हुआ विश्वास जो आपसे कायम हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे. So the Apostle Peter tells us that in our life, Christian life, we will have many trials. यहाँ पे प्रेरित पत्रस हमसे कहते हैं कि हमारे मसीही जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी. And various types of trials. विविध प्रकार की परीक्षाएं. And many times we are a little distressed by those things. और कई बार हम उससे बहुत ही निराश हो जाते हैं. See, and the apostle understands because he also went through so many trials which distress us. और प्रेरित को भी समझ में आता है क्योंकि वो भी बहुत सारे ऐसे परीक्षाओं से होते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं. But there's a purpose that God sends us trials. और परमेश्वर का एक योजना है जिसके पीछे परमेश्वर बहुत सारी परीक्षाओं को भेजते हैं. And trials are very, very essential for you and me. और परीक्षाएं जो है मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही जरूरी है. For those who are unbelievers, they don't want trials at all. और जो अविश्वासी होते हैं उन्हें परीक्षाओं की बिल्कुल जरूरत नहीं. They want their life to be a nice picnic, nice holiday. और उनको उनका जीवन जो है बहुत एक पिकनिक की जैसा या छुट्टी मनाने जैसा होना चाहिए. But for a Christian, life is full of battles. परंतु मसीही के लिए जीवन जो है वो युद्ध से लड़ाइयों से भरा हुआ है. We have to fight against the devil and fight against people who are controlled by the devil. और हमें शैतान से लड़ना है और जो लोग जो शैतान के द्वारा अधीनता में हैं उनसे भी लड़ना है. When we come to the Lord, the Holy Spirit comes into our life. जब हम प्रभु के पास आते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है. And our moral standards change. और हमारा जो चरित्र है वो बदल जाता है. We live by the power of the Holy Spirit. हम जीते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा. But the people of this world live by a different spirit. The spirit of the devil is there in their life. दुनिया के लोग जो जीते हैं उसमें एक अलग अंतर होता है क्योंकि वो शैतान की आत्मा के द्वारा है. They lie, they cheat, they get angry, they lust, they do all sorts of evil things. जो झूठ बोलते हैं, वो गुस्सा करते हैं, सारी बुराई के काम वो करते हैं. And but they see us, they feel convicted. और परंतु जैसे वो हमें देखते हैं तो उन्हें उनका अपराध का एहसास होता है. And therefore they hate us. इसलिए वो हमसे नफरत करते हैं. That is why they hated Jesus, they hated the Apostle Paul. इसीलिए वो यीशु से नफरत करते थे, फिर पौलुस से नफरत करते थे. Jesus said, you shall be hated of all men for my name's sake. यीशु ने कहा कि तुम्हें लोग मेरे नाम के द्वारा तुम्हें नफरत करेंगे. If you and I become disciples of Jesus Christ, we'll be hated by all men. जब मैं और आप यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं तो हम सारे मनुष्यों के द्वारा नफरत झेलेंगे. Including our family members, our office people, our neighbors, everybody. हमारे घर के लोग, हमारे जो पड़ोसी होते हैं, हमारे दफ्तर के लोग सभी इसमें शामिल होंगे. Because the Bible says in Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed. बाइबल कहता है रोमी 12 के दूसरे वचन में भी इस दुनिया के सदस्य न बनो परंतु बदल जाओ, परिवर्तित हो. The more we change, the more we are different from the world, and the more the world hates us. और जितना हम बदलते हैं उतने ही हम इस दुनिया से अलग हो जाते हैं, उतना ही दुनिया हमसे नफरत करने लगती है. How the people of this world and all the religious people hated the Apostle Paul. और प्रेरित पौलुस से कैसे लोगों ने जितने भी बाइबल के पंडित थे कैसे उनसे नफरत रखते थे. All the people who had the Bible with them, they were all worldly people, and they said this person should not live.
और जितने लोगों के पास बाइबल था सभी संसारिक लोग थे, वो कहते थे कि इंसान जो है जिंदा नहीं होना चाहिए, because they had the spirit of this world and they wanted to live according to the ways of the world, which were controlled by the devil. क्योंकि उनके अंदर इस संसार की आत्मा थी और इस संसार के द्वारा वो जीना चाहते थे जिसका नियंत्रण शैतान के हाथों में था। And God allows us to live in this world with so many trials. और परमेश्वर अनुमति भी देते कि जब हम दुनिया में जीते हैं हम तो सारे परीक्षाओं को झेलते हैं। Because these trials are good for us, we will come closer to the Lord. क्योंकि ये परीक्षाएं हमारे लिए अच्छे के लिए हैं, क्योंकि हम प्रभु के निकट आ जाएंगे। If everything was very nice in our lives, अगर सब कुछ हमारे जीवन में बहुत अच्छा होता, in our offices, in our financial situations, our health, then we would rarely seek the Lord. अगर हमारा जो आर्थिक परिस्थिति है वो अच्छा होता, हमारी सेहत अच्छी होती और दफ्तर में सब कुछ अच्छा होता, तो हम प्रभु को ज्यादा नहीं खोजते। Look at all the people of this world. They want to, on Sundays, they want to enjoy their life. देखिए दुनिया के सारे लोगों को रविवार के दिन वो अपना जीवन का आनंद उठाना चाहते They हैं। get up late, have late breakfast, then they go for an outing, and they have late lunch, and they just want to enjoy Sundays. और वो रविवार को बहुत ही देरी से उठते हैं, देरी से नाश्ता करते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, वो उनके इस दिन को बहुत अच्छे से उसका आनंद लेना चाहते हैं। And because of that, they don't want trials and they don't come close to God. इसी के कारण वो परीक्षाओं को अपने जीवन में नहीं चाहते, इसलिए परमेश्वर के निकट नहीं आते। And when they live in this world, they do a lot of sin. और जब इस दुनिया में वो जीते हैं तो बहुत पाप करते हैं। And because of that, they feel convicted when they look at other godly men. इसी के कारण जब वो परमेश्वर के जन को देखते हैं तो उनको देख के उनका खुद का अपराध का एहसास उन्हें होता है। But for godly people, there are different trials, so that sometimes we get distressed. और जो परमेश्वर के जन होते हैं उनके जीवन में बहुत सारे प्रकार के परेशान आ जाते हैं, कई बार हम बहुत परेशान हो जाते हैं। But in our distresses, we must endure. परंतु इन सारे परीक्षाओं में हमें सहना है अंत तक। For example, if a child goes to school and to college, there are a lot of tests and a lot of homework and hard work he has to do well. उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि बच्चा एक क्लास में पढ़ने जाता है या तो फिर कॉलेज में जाता है, तो उसको बीच में बहुत सारे ऐसी परीक्षाएं दिए जाते हैं ताकि उसको लिखे। They would rather prefer to play and to enjoy, go for picnics and outings. इसके भी परीक्षाओं को देने की बजाय वो ये चाहेगा कि बाहर जाए, खेले कूदे और आनंद मनाए। But if they do that, they will never progress in their life. They'll never get good marks, and they may fail also. अगर वो ऐसा ही करेगा तो वो अपने जीवन में उन्नति नहीं पाएगा, अच्छे अंक उसके नहीं आएंगे, सफल नहीं होगा, वो हार भी सकता है। That's why the school and the tuition teachers give them so many tests. इसीलिए स्कूल में और ट्यूशन की जो टीचर्स रहती हैं उन्हें बहुत सारी परीक्षा देते हैं। So in your life and my life, if we have to spiritually grow, we also God sends us many tests. अगर मेरे और आपके जीवन में हमें भी बढ़ना है तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षा देते हैं। And if I know the purpose of it, I will say, Lord, I thank you, Lord. And we'll say like James chapter 1 verse 2, it says, consider it all joy when you fall into different types of trials. जब इस योजना को हम समझ पाते हैं तो हम क्या कहेंगे, जैसे कि याकूब में लिखा हुआ है कि जितनी भी परीक्षाएं दुख तकलीफ आती है आपके जीवन में, सबको आनंद का कारण समझना है। It says verse 7 that the proof of your faith, being much more precious than gold which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in the praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. 7वें वचन में, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आपसे ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। We all have faith. हम सभी के पास विश्वास है। But the Lord wants to test our faith through trials, whether that is the proof, whether we really love the Lord. और परमेश्वर हमारे इस विश्वास को परखना चाहते हैं क्योंकि ये साबित करता है कि क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं कि नहीं। In the world also, any good thing has to be tested. इस दुनिया में भी अच्छी चीज होती है उसका परीक्षा ली जाती है। Any gadget that has been produced in the market, or an electronic thing, has to go through multiple tests before it is used. जो भी यंत्र मार्केट में आते हैं, बहुत सारी चीज जो मार्केट में आते हैं, उसको जो है अच्छा है कि परखने के लिए उसको बहुत सारी परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। Same thing with our Christian life. God wants to see that we are not just people who are speaking about it, but really we are practicing it and our faith is genuine. और परमेश्वर यही होता है हमारे मसीही जीवन में भी, परमेश्वर यही देखना चाहते हैं कि हम सिर्फ ऐसे लोग नहीं हैं, सिर्फ बात करते हैं, परंतु हम ऐसे लोग हैं जो इस बातों को, इस विश्वास को हमारे जीवन के प्रतिदिन में इसका अभ्यास भी करते हैं, इसी में जीते हैं। See, most believers, most Christians everywhere, their faith is very hollow. They live a double life.
और बहुत से विश्वासी जो दुनिया में है, उनका जो विश्वास है बहुत ही कम है। वो एक दोहरा जीवन जीते हैं। Their outer life is different and their inner life is different. उनका बाहरी जीवन अलग होता है, अंदरूनी जीवन अलग होता है। That is what the Bible called hypocrite. इसीलिए इसको बाइबल कहता है पाखंडी। And that's why many people, Christians don't, and many people don't like to come to the church. He said there are too many hypocrites in the church. इसलिए बहुत से लोग जो है कलीसिया में भी आना नहीं चाहते, वो बहुत सारे पाखंडी भरे हुए हैं। They're very nice and kind outside, but inside they love money and they have so much hatred in their heart. वो बाहरी रूप से तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही करुणालु दयालु दिखाई देते हैं, परंतु अंदरूनी रूप में जो है पैसों का प्रेम और नफरत भरा हुआ है। They are full of politics and they hate in their heart, just like the Pharisees in the time of Jesus. उनके अंदर राजनीति भरा हुआ है, नफरत भरा हुआ है, जैसे यीशु मसीह के समय पर फरीसी और सदूकी हुआ करते थे। They sing nice songs and they give long prayers and long speeches and do a lot of evangelism. वो बहुत अच्छे गीतों को गाते हैं, बड़ी भाषण देते हैं, बाहरी रूप से बहुत अच्छे काम और बातें भी करते हैं। But their inner life is not at all good. Jesus told them, "You are full of lust and anger and love of money." और उनका परंतु अंदरूनी जीवन जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यीशु ने उनसे कहा कि तुम नफरत से, गुस्से से, लालसा से, पैसों के प्रेम से भरे हुए हो। And that is why God could not speak anything to them. इसीलिए परमेश्वर उनसे कुछ भी बात ना कर सके। So that is in our trials, God shows us what our true condition is. और हमारी परीक्षाओं में परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि हमारा सही हाल क्या है। And the world they say your true colors. और दुनिया में कहा जाता है तुम्हारा असली रंग। So we see our true colors and when there are problems in our life. और हमारा असली रंग हम तभी देख पाते हैं जब हमारे जीवन में परेशानी आती है। We don't see our colors when we're sitting in the meeting. और जब सभा में बैठे हुए हमारा जो असली रंग है वो नहीं देख पाते हैं। Maybe we sing very nicely, pray very nicely, but we may keep on shouting at our wife or keep on doing all sort of lustful things in our private life. हो सकता है कि यहाँ पे बैठ के अच्छे से गीत गाते हो, प्रार्थना करते हो और अच्छी बातें कहते हो, परंतु हमारा जो निजी जीवन है उसमें हम आप चिल्लाते रहते हो और बुराई के काम हम करते हो। But the trials bring out our true nature. परंतु जो ये परीक्षाएं होती है वो हमारा असली स्वभाव बाहर निकालता है। There was a sister when I was quite young. She told us this testimony. और एक बहन भी जब मैं बहुत ही जवान था तब उन्होंने ये गवाही दी थी। She said she was a nurse. उन्होंने कहा कि मैं एक नर्स हूँ। She was a student nurse. वो एक स्टूडेंट नर्स थी। And then at the end of her term, she got a remark from a superior. और उनके उस ट्रेनिंग के अंत में उनके सुपीरियर से उन्हें एक रिमार्क मिला। As it said this, she works best when she is watched. वो अच्छे से काम करती है जब उस पर निगरानी होता है। That was such a subtle and sarcastic bad comment. बहुत ही इतना अच्छा एक लिखा हुआ नहीं था वो। That is, she only works well when somebody is watching them. वो तभी अच्छे से काम करती है जब उस पर कोई निगरानी रखता है। There she don't neglect and nobody watching. She does a very slipshod work. See, we must realize that God is watching me and watching you all the time. तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे और आपको हर समय देखते हैं। So sometimes we don't know that God is watching us. और कई बार हम नहीं सोचते कि परमेश्वर हमें देख रहा है। And God speaks to us in our problems of life. और परमेश्वर हमारे जीवन की परेशानी के द्वारा हमसे बात करता है। We see ourselves, the sin coming out when things are becoming very hot. और जब चीजें बहुत ही परेशानी भरी हो जाती है तब देखते हैं कि जो पाप है वो उभर के बाहर दिखता है। Says our faith is more precious than gold. यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा जो विश्वास है वो गाय में सोने से भी अधिक मूल्यवान है। And gold has to be tested by fire. और जो सोना है उसे आग के द्वारा परीक्षा की जाती है। See, we are all like gold in the presence of God. देखिए परमेश्वर की उपस्थिति के सामने हम सभी सोने के समान We are हैं। very precious to God. और परमेश्वर के लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं हम। In fact, we are more precious than gold. और हम सोने से भी अधिक बहुमूल्य हैं। All of us are very, very costly. All those who are born again are very costly because Jesus, the Spirit of God, is in our life. और जितने भी नए जन्म आए हुए हम हैं बहुत ही मूल्यवान है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। But there are a lot of faults in each one of us. परंतु हम हर किसी में बहुत सी कमियां भी हैं। There are a lot of impurities. बहुत सारी अशुद्धता है। And these impurities come into the surface when we are put in the fire. और ये जो अशुद्धता है वो ऊपर आ जाती है जब हमें आग में डाला जाता है। Fire means all the problems and the trials of our life.
आपका अर्थ ये है कि हमारे जीवन में जितनी भी परेशानी आती है, परीक्षाएं आते हैं वो, then as the gold is heated, all the impurities come to the surface. और जैसे कि आग के बराबर वो जो जितनी भी अशुद्धता है वो ऊपर आ जाती है, Just like that, the anger and the irritation comes to the surface, और जो गुस्सा और चिड़चिड़ाहट ऊपर आ जाती है, or the fear comes, the anxiety comes. और जो डरना, भय मानना, चिंता करना, It is always there. ये हमेशा रहती है उसमें, But because of the fire, it has come up. पर कोई आग के कारण वो ऊपर आ जाती है, And there we can see our lives and what we should do. God is not surprised. और तब हमारा जीवन हमें दिखता है, परमेश्वर ये देख के अचंभा नहीं होते हैं। God points out, this is the thing you have to change. We have to repent from it. You have to change your ways. और परमेश्वर कहते हैं ये चीज है जिसे तुम्हें बदलना है, तुम्हें पश्चाताप करना है, इसमें से बाहर आना है। And then when we do that, we get cleansed from all those bad habits. जब हम ऐसा करेंगे, हमारी जितनी भी बुरी आदतें हैं उसमें से हम शुद्ध हो जाएंगे। So that's why the Lord is purifying us like gold is purified. इसलिए परमेश्वर हमें शुद्ध करते हैं जैसे कि सोने को शुद्ध किया जाता है। And then our lives become more and more like Jesus. फिर हमारा जीवन जो है ज्यादा से ज्यादा यीशु के समान होगा, Our value in the sight of God becomes better and better. और हमारा जो मूल्य है परमेश्वर के सामने और अच्छा होता है। That is the gold. There is gold that is full of rocks and impurities. Is not very. It is expensive, but not very expensive. और जो सोना जिसमें बहुत सारा अशुद्धता होता है, जो पत्थर वगैरह होते हैं वो मूल्यवान तो होते हैं, बहुत ज्यादा मूल्यवान नहीं So the होते। Lord wants us to be like pure gold. परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि आप खाए में सोने के समान हो। And the Lord told me, what does it mean, gold mean in our practical life? और परमेश्वर ने मुझे कहा कि सोने का अर्थ क्या है हमारे दिन पर दिन के जीवन में। See, gold means God wants us to have that pure love in our life. और परमेश्वर ने कहा कि सोना मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में शुद्ध प्रेम हो। We have got love in our life. हमारे जीवन में एक प्रेम है। The Holy Spirit has put love into our heart when we are born again. और जब आपने नया जीवन पाया तो पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर प्रेम को उंडेला। But there is a lot of love for the world and human love also in our own lives. परंतु हमारे जीवन में दुनिया के लिए भी प्रेम है, दूसरे मनुष्यों के लिए भी प्रेम भरा हुआ है। That is why Jesus asked Peter, Peter, do you love me more than these? और इसीलिए यीशु ने पतरस से पूछा कि पतरस तुम इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करते हो क्या? And Peter was honest, Lord, you know. पतरस बहुत ही ईमानदारी से कहता है कि प्रभु आप जानते हो। So many things in our life we love so much more than God. और बहुत सारी चीजें हैं हमारे जीवन में जिससे हम परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं। That hinders our fellowship with God. वो हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ उपस्थिति को ठोकर बनता है। The Bible says, do not love the world. 1 John chapter 2. पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय। 1 John chapter 2 verse 15. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 15 वचन। Do not love the world, nor the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। The Holy Spirit is always reminding us of all our deficiencies, of all our bad habits, of all our sins. पवित्र आत्मा हमेशा हमें याद दिलाता है, हमें जितनी भी कमियां हैं, जो बुरी आदतें हैं, पाप है, सब याद दिलाता है। He doesn't show us all our sins at one time. वो हमें सारे पाप जो है एक साथ नहीं दिखाता। He shows us 1 or 2 things at a time every day. और एक एक करके प्रतिदिन एक या दो चीज दिखाता है। And if we are willing to change and if willing to set it right, then he'll show us more things. अगर हम बदलने के लिए तैयार हैं, सही करने के लिए तैयार हैं, तो वो और भी चीजें दिखाता है। But if we are not willing to settle the few things which God has already showed us, then he will not tell us anything more. जो परमेश्वर ने पहले से ही एक दो चीज दिखाए हैं, अगर वो सही करने के लिए हम तैयार नहीं है तो परमेश्वर और जो बातें हैं वो नहीं दिखाएंगे। We live in this world that is so attractive. ये दुनिया में हम रहते हैं जो बहुत ही आकर्षित है। It says there is a lust of the flesh. यहाँ पे लिखा हुआ है
शरीर की अभिलाषा है The desire to eat good food, sleep, sex is very, very attractive. और सोने की अभिलाषा व खाने की अभिलाषा और जो लैंगिक बातें हैं बहुत ही आकर्षित लगता The है internet, YouTube is full of it. और जो इंटरनेट और यूट्यूब है उसमें से भरा हुआ है And there is some attraction in our lives that go towards these things. और हमारे जीवन में एक आकर्षण होता है जो उसकी ओर ही जाता है But if we go towards these things, we find that our love for God and the desire to pray and to worship God becomes less and less and less. अगर हम इन चीजों के पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना करना परमेश्वर से प्रेम करने की जो दिलचस्पी है वो कम होती जाती है And the lust of the eyes also, that is whatever we want to buy this, we want to buy clothes, we want to buy so many things that accumulate. There's a desire to keep on accumulating these things in our life. और आंखों की अभिलाषा मानो कि जो भी हम देखते हैं वो सब कुछ खरीदने की इच्छा होती है सब कुछ इकट्ठा करने की मन में लालसा भर जाता है I was listening to a testimony of one brother called Derek Prince, who was a very godly man. डेरिक प्रिंस करके परमेश्वर का एक भक्त है उनका जो गवाही मैंने देखा So he said when he was in Israel, they started building a house. उन्होंने कहा कि जब वो इजराइल में थे वो एक घर बांधने लगे And they built a nice house. उन्होंने बहुत ही अच्छा एक घर बांधा And he and his wife and the children were staying there. और वो उनकी पत्नी और बच्चे वहां पे रह रहे थे But after some time, he shifted to another simpler house in a flat. और उस कुछ समय बाद वो एक फ्लैट में छोटे से घर में वहां से चले गए And the reason he gave was this. और वो उन्होंने कारण ये बताया वहां पे जाने का The good house was owning him rather than he owning the house. और वो जो अच्छा घर है वो उनका मालिक बन जाता वो उसकी मालिक बनने की वजह Because the house was so good, they were trying to take care of the house so much. This thing should be got, it should not be made dirty, this thing. And they were looking after the house more than they were looking after themselves. और वो घर इतना अच्छा था कि वो घर में गंदा नहीं होना चाहिए बहुत अच्छे से ख्याल रखने के चक्कर में वो उनको देखने के बजाय उस घर के देखने ज्यादा कर रहे थे The children should not spoil the walls. They should not do this. Everything should be kept neatly like that. और बच्चे जो है दीवार पर जाके कुछ लिख ना दे जितना जो कुछ भी है बहुत ही अच्छे से साफ सफाई से रखा जाए A house should be like a first 5-star hotel. और वो जो घर है वो 5 स्टार होटल के समान होना It is चाहिए very nice to live in a 5-star hotel. और 5 स्टार होटल में रहना तो बहुत ही अच्छी बात है But if that is going to be our attention all the time, then that house is going to own us. अगर हमारे ध्यान में हमेशा वही रहेगा तो वो घर जो है हमें अपना स्वीकार करेगा वो हमारा मालिक बन जाएगा God gives us houses, jobs, so that we may put our attention on Him and thank Him for it, and not put our attention on the house and the job and all the other good things. और परमेश्वर हमें घर देते हैं नौकरी देते हैं ताकि हमारा जो ध्यान है हमेशा प्रभु पर हो ना कि इस नौकरी के ऊपर या जो भलाई जो परमेश्वर ने दी है उसके ऊपर रहे There was a godly man called C.S. Lewis. और एक परमेश्वर के जन है जिनका नाम है C.S. लुईस He said, enjoy all the good things, उन्होंने कहा सारी चीजों का आनंद उठाओ but don't hold on it too very tight. परंतु उसको बहुत ही जोर से पकड़े मत रहो If it has to go, let it go. अगर वो जाना चाहते तो उसे जाने दो I've got much more better things in heaven. और मेरे पास वर्ग में इससे भी अच्छी चीजें रखी So हैं we must be lovers of God rather than the lovers of all these worldly things. तो हमें परमेश्वर के प्रेमी बनना चाहिए इसके बजाय कि इस दुनिया की जो चीजें हैं उसके प्रेमी बनना Sometimes we can get so disturbed, and then the Lord shall see you love these things so much. और कई बार हम बहुत परेशान हो जाते हैं तभी परमेश्वर हमें दिखाता है कि देखो तुम इन सारी चीजों से प्रेम रखती हो There was one sister who had some teapot and tea cups and saucers which her mother had given on a wedding. और एक बहन थी जिनको उनकी मम्मी ने जो है चाय का टीपॉट दिया था और जो कप्स होते हैं उनकी शादी में उनको तोहफा दी थी It's a nice set. बहुत ही अच्छा एक सेट था And the husband in his own carelessness broke one of those cups. और पति ने क्या किया लापरवाही में उसमें से एक कप तोड़ दी उसने Now the wife got very disturbed. और जो पत्नी है वो बहुत ही परेशान हो My dear mother has given this precious cup and now one cup is gone. और मेरी प्यारी माँ ने यही एक सेट दिया था उसमें से एक कप तो चला गया No, when we look at God, what is it? Doesn't matter. The cup is not important. Our relationship is more important. पति ने देखा और कहा कि देखो ये कप जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं है हमारा जो रिश्ता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण That is why God allows in our these problems and trials to come apart to show where our true love is. और इसलिए परमेश्वर अनुमति देते हैं कि सारे परेशानियां और जितनी भी परीक्षाएं हमारे जीवन में आए ताकि हमारा जो सच्चा प्रेम हो दिखा पाए We tend to love the curtains more and the bed sheet more and all these things and love people. और हम जो है कर्टन से और बेडशीट जितनी भी चीजें हैं उससे प्रेम करने लग जाते हैं It said that if we love all these things, we cannot love God, neither can we love people.
और कहा गया है कि अगर हम इन चीजों से प्रेम करने लग जाए, ना तो हम परमेश्वर से प्रेम कर पाएंगे, ना तो मनुष्यों से, And we start losing our temper. और हम गुस्से में आने लगेंगे। Instead of having love in our heart and compassion in our heart, we start loving the things. और हमारे हृदय में प्यार और दया होने की बजाय इन सारी चीजें आएंगी। That is why God allows all these trials to come across our life. इसलिए परमेश्वर अनुमति देते हैं कि सारी जो परीक्षाएं जो है हमारे जीवन के द्वारा When we say, Lord, I surrender all. परंतु हमें कहना है कि प्रभु मैं सब कुछ समर्पित करता And हूँ। we sang that song, Lord, you are the potter, I am the clay. जैसे कि हमने इस गीत को गाया कि प्रभु आप कुम्हार हो, मैं मिट्टी हूँ। Lord, I am putting my hands up, I'm yielding to you. You do whatever you want to do in my life, in my situations and circumstances, in my home, in my workplace, the church, and make me like you want me to be. और हम अपना हाथ ऊपर करके और बोलते घुटने टिकाने कि प्रभु आप जो कुछ भी मेरे जीवन में करना चाहते हो, मेरे घर के जीवन में, मेरे काम की जगह पे, जो भी परिस्थितियां मेरे जीवन में आ रही है, सब चीजों में आपकी जो भी इच्छा हो वही मेरे जीवन में पूरी हो जाए। And God, the Holy Spirit, does a wonderful work in our life. और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत काम करते हैं। So though we get distressed and get pain of it, God says it is for your good. You are going to love heavenly things and eternal things more. भले हमारे जीवन में हमें दुख हो, दर्द हो, तो परमेश्वर कहेंगे कि ये तुम्हारी भलाई के लिए है, क्योंकि इस वर्ग में तुम्हारे इससे भी अच्छी वस्तुएं रखी हुई है। God gives so many trials to His children. और परमेश्वर अपने संतानों को बहुत सारी परीक्षा देते हैं। Sometimes we say, why so many other unbelievers are not having such trials? कई बार हम कहेंगे कि जितने भी अविश्वासी हैं उनको इतनी परीक्षाएं क्यों नहीं होती? And there are so many other believers also, they are very happy and they are not having so many trials. Only why I should have these trials? और दूसरे भी विश्वासी हैं, वो तो हमेशा खुश रहते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं आती है, सिर्फ मुझे ही क्यों ये परीक्षाएं आती हैं? If you are interested to become more like Jesus, the Lord will change you a lot. He will chasten you. He will do so many things in your life and make you a fantastic person. अगर आप यीशु मसीह के समान बनना चाहते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे ताड़नाएं लाएंगे, बहुत सारे ऐसे हालातों से आपको गुजरने देंगे ताकि आप में से प्रभु के जैसे चरित्र में आप बदलते जाओ, बनते जाओ। And He will do it in love, and we will know that God is doing this work in our life. और वो बहुत ही प्रेम से करेंगे और आपको जान भी पड़ेगा कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। I've seen that in my own life. I've gone through so many trials ever since I was a young man. और मैंने अपने जीवन में देखा हुआ है कि मैं बहुत सारे परेशानियों से होकर गुजरा हूँ मेरे जवानी के दिनों से। And there are in the office also some people will say, why are people harassing you only? और दफ्तर में भी लोग कहते थे कि लोग सिर्फ तुम्हें ही क्यों सताते हैं? Why are they after you? आपके पीछे भी क्यों है वो? I know why. मुझे पता है क्यों। Because I want to follow Jesus and I want to take a stand for the Lord. People hate us. क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़ा हूँ, प्रभु का पीछा करना चाहता हूँ, तो लोग मुझसे नफरत रखेंगे। And the Holy Spirit will help us. और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगी। And like the Apostle Paul said, I am what I am by the grace of God. जैसे कि प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं जो हूँ वो हूँ प्रभु परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा। There are so many believers who don't want any trials in their life. Say, Lord, please take away this problem. Please take away this problem as soon as possible. और बहुत से विश्वासी हैं उनके जीवन में बिल्कुल भी परीक्षाओं को नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी भी परेशानी मेरे जीवन में हो रही है, सबको निकाल दीजिए। So the Lord said, no, I will not tell you anything. और फिर परमेश्वर से कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। There was one brother, once brother Zach was trying to correct him. और एक भाई थे जिनको भाई जैक जो है सुधारने की कोशिश कर रहे He थे। was asking him some details about his life, how he was living. और वो उनके जीवन के बारे में विवरण पूछ रहे थे कि वो कैसा जीवन जी रहे हैं। And he told brother Zach, nobody corrected me like this and nobody asked me all these questions. और उन्होंने भाई जैक को कहा कि किसी ने मुझे ऐसे सुधारा नहीं, किसी ने इतने सारे सवाल मुझसे किए भी नहीं हैं। Brother Zach told him, I will not ask you any more questions in future. और भाई जैक ने उनसे कहा कि आगे से मैं आपसे कुछ भी सवाल नहीं करने वाला। See, God keeps people above us, God will teach us in our school. If we don't take correction, they will not give correction. अब परमेश्वर ने हमारे ऊपर लोगों को रखा है ताकि वो हमें सिखा सके, सुधार सके। अगर आप वो सुधार सिखाने के लिए तैयार नहीं हो तो आपको कुछ नहीं बताएंगे। The Lord was telling me, when we go to heaven, the Lord will ask the Lord, Lord, you never corrected me on this. और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम प्रभु से पूछेंगे कि प्रभु आपने इस विषय में तो मुझे सुधारा नहीं। And the Holy Spirit will say, because you did not want to listen. अभी पवित्र आत्मा हमसे कहेगा कि क्योंकि तुम सुनना ही नहीं चाहते। There are small things in our life I wanted to tell you, but you were not willing to listen. और छोटी-छोटी तुम्हारे जीवन में बातें थी जो तुमसे कहना चाहता था, परंतु सुनने के लिए तुम तैयार नहीं थे। That is why I could not do work in your life.
इसीलिए तुम्हारे जीवन में कोई काम नहीं कर पाया है। You got a very small, you lived a very low quality life. एक बहुत ही निचले स्तर का जीवन तुमने जिया है। But those who listen to the Lord makes them like a good bowl, a useful vessel. और जो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, सुधरते हैं, परमेश्वर उन्हें एक योग्य काम में आने वाला उपयोगी पात्र बनाता है। In 2 Timothy, we see that verse. दूसरा तिमुथियुस में इस वचन को देखते हैं हम। Chapter 2, verse 20. दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 20वां वचन। It says, now in a large house there are not only gold and silver vessels, but also vessels of wood and earthenware, and some to honor and some to dishonor. बड़े घर में न केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। And verse 21, therefore if a man cleanses himself from these things, he will be a vessel of honor, sanctified, useful to the master, prepared for every good work. 21वां वचन, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। So in a house like the church is a house, there are different type of vessels. जैसे कि घर में, जैसे कि हमारे कलीसिया जो घर है उसमें अलग-अलग प्रकार के बर्तन हैं। Some are honorable vessels, some are dishonorable vessels. कुछ आदर के योग्य हैं, कुछ अनादर के योग्य हैं। When we come to the Lord, we are all dishonorable vessels. जब हम प्रभु के पास आते हैं तब अनादर के योग्य बर्तन हैं। But if a man cleans himself up, अगर कोई मनुष्य अपने आप को शुद्ध कर ले, in our life there are a lot of cleaning to be done. और हमारे जीवन में बहुत सारा सफाई करना बाकी है। All the dirty motives, all the anger, evil things which God says, Lord, I don't want these things in my life at all. हमारे जितने भी बुरे उद्देश्य हैं, जितने भी गुस्सा है, जितनी भी बुरी बातें हैं, तो हम कहेंगे प्रभु से कि प्रभु ये सब मेरे जीवन में मुझे नहीं चाहिए। He will be a vessel of honor, वो आदर का बर्तन होगा, useful to the master, और स्वामी के काम आने and वाला, prepared for every good work. और सारे भले काम के लिए तैयार होगा। See, God wants to use us as good vessels परमेश्वर चाहते हैं कि हमें अच्छे बर्तन के समान उपयोग करें, to bless others. दूसरों को आशीर्वाद करने के लिए। And many times God cannot use us because of so many wrong things in our life. We are not willing to change. और पहली बार परमेश्वर हमारा इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे गलत चीजें फंसी हुई हैं जो बदला हुआ नहीं है। Certain bad habits, certain bad friends and relatives, we are still sticking on, and because of that, the Holy Spirit cannot work in our life. कुछ गलत आदतें, कुछ बुरे जो हमारे रिश्तेदार या मित्र जिनसे हम जुड़े हुए हैं, इसी के कारण परमेश्वर हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं कर पाता। Because of that, we cannot praise the Lord and worship the Lord. इसी के कारण हम परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाते, आराधना नहीं कर पाते। God wants us to worship Him in spirit and in truth. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। But if there are bad habits in our life, then we cannot worship God. अगर हमारे जीवन में कोई बुरी आदतें होंगी तो हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाएंगे। And we cannot serve God also. और परमेश्वर की सेवा भी नहीं कर Now, पाएंगे। serving God doesn't mean we become great preachers and teachers and big singers. सेवा का अर्थ ये नहीं है कि हम बड़े भाषण बोलने वाले, प्रचार करने वाले या बड़े गीत गायक हो। God can use anybody in an unknown way. और परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अनजाने तरीकों से। The greatest service that we do is the service of prayer. और सबसे बड़ी सेवकाई जो हम करते हैं वो है प्रार्थना का सेवा। And we can pray very secretly, nobody knows. बहुत ही गुप्त में होकर हम प्रार्थना कर सकते हैं, कोई भी नहीं जान पाएगा। Everybody wants to stand up. I want to be a pastor, I want to singer, I want to make a big show. बहुत सारे लोग खड़े होकर कहते हैं मैं पासवान बनना चाहता हूँ, गीत गाने वाला बनना चाहता हूँ, दिखावा देना चाहता हूँ। But their inner life is very bad. परंतु उनका अंदरूनी जीवन बहुत बुरा होता है। I heard of a sister, she was standing up as a worship leader, singing and praising the Lord on the stage and waving her hand like this, like that. मैंने एक बहन के बारे में सुना जो कि वर्शिप लीड करती थी, वो प्रार्थना आराधना करती थी, अपने हाथों को उठाकर स्तुति गीत गाती थी। But somebody came and told that she is living in adultery. परंतु किसी ने आकर कहा कि वो जो बहन है वो व्यभिचार में जी रही है। There are so many people, pastors and singers and teachers, they're living very double lives and still they are preaching, teaching and doing evangelism, going here and there. बहुत सारे प्रचारक के भाषण देने वाले हैं, गीत गायक हैं जो बहुत ही बुरा एक जीवन जीते हैं, फिर भी वो बाहर जाते हैं, प्रचार करते हैं, गीत गाते हैं, जो भी बाहरी सेवकाएं हैं वो भी कर रहे हैं। They do the work of God, people come to the Lord, but God says, I'm not pleased with you.
और वो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, परमेश्वर के जन उनके पास आते हैं, परंतु प्रभु कहता है कि मैं तुमसे तो प्रसन्न नहीं हूँ, Your life is not holy. तुम्हारा जीवन पवित्र नहीं है, You are not cleaning your life. तुम अपने जीवन को शुद्ध नहीं कर रहे हो, Because of that, you will not see me. इसी के कारण तुम मुझे देख नहीं पाओगे। Hebrews chapter 12, 10 it says that without holiness, no one will see the Lord. इब्रानियों 10 के अध्याय में लिखा हुआ है कि पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देखेगा। Soon as we see something wrong in our life, we must clean it up. जितनी जल्दी हमें दिख रहा है कि हमारे जीवन में कुछ तो गलत है, तो हमें तुरंत ही शुद्ध करना है। Then the presence of God will come into our life. फिर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में And whatever you do will be a blessing. फिर जो कुछ भी आप करोगे वो आशीष होगा। We don't have to be great preachers. We know, in fact, 50% of the of all believers cannot preach. और हमें बड़े प्रचारक बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि 50% लोग जो है प्रचार नहीं कर पाते। More than 50, more than 70%. और 70% से अधिक लोग Why? प्रचार नहीं कर पाते। Because most of them are sisters and children क्योंकि उनमें से कई लोग बहन लोग होती हैं, बच्चे होते हैं and young people. और जो जवान होते हैं। But what they can do, पर हम क्या कर सकते they हैं? can live in fellowship with God and pray. और हम परमेश्वर के साथ संगति में जी सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। Prayer is the highest form of service, और जो प्रार्थना है सबसे बड़ी सेवकाई है, and we will not take any credit for it. और हमें उसके लिए कोई श्रेय नहीं मिलेगा। And God also will not show us what is the outcome of our prayers. और परमेश्वर भी हमें नहीं दिखाएंगे कि हमारा प्रार्थना का परिणाम क्या है। Only on the final day, the Lord will say, because you prayed, my dear son, daughter, this person got saved, that problem was solved, that sickness was healed. सिर्फ आखिरी दिन में परमेश्वर हमें कहेंगे कि तुम्हारे प्रार्थना के कारण ही वो जो भाई बहन है वो प्रभु में आए हैं, उनका जो परेशानी है उसका उपाय निकला है, उनका जो रोग है वो चंगा हुआ है, ये भले काम हुआ तब हो गए। No other believers knew about it, only God knew. कोई भी विश्वासी नहीं जानता था, सिर्फ परमेश्वर जानता था। These are the best vessels. ये सबसे अच्छे बर्तन हैं। We heard about a person called Brother Lawrence. हमने एक भाई के बारे में सुना जिनका नाम है भाई लॉरेंस। He was a cook. वो एक बावर्ची थे। But he lived in such close fellowship with the Lord that as he was doing the cooking and all these things, he could worship God and God's word used to come to him. और जब भी वो खाना बनाते कोई भी काम करते थे, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहते थे, जैसे भी परमेश्वर की स्तुति आराधना वो करते थे तो परमेश्वर का वचन उनके पास आता था। Because God speaks to those who are humble. क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से बात करते हैं जो कि नम्र हैं। God never speaks anything to proud people. और जो घमंडी होते हैं उनसे परमेश्वर कुछ भी नहीं कहते। If you are a proud believer, proud pastor, proud singer, God will never speak anything to you. अगर आप एक घमंडी पासवान हैं, प्रचारक हैं या तो कोई गायक है तो परमेश्वर आपसे कुछ नहीं कहेंगे। You don't have to be educated at all. You don't have to go to school to hear the voice of God out and to hear the voice and to live with Him. और हमें जो है पढ़ाई लिखने की जरूरत नहीं है, स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए परमेश्वर के साथ ही मिलती है। God gives His revelation to the humble people. और परमेश्वर प्रकृति कर उनको ही देते हैं जो कि नम्र हैं। And this brother Lawrence was such a good example by his words and by his behavior. He was a blessing to all the people in that institution. और जो भाई लॉरेंस है बहुत ही अच्छा उदाहरण है, उनके जीवन के द्वारा, उनके बातों के द्वारा, कमाई के द्वारा, कामों के द्वारा उस कलीसिया के लिए जहाँ पे वो जाके सभी के लिए आशीष का कारण थे। And there is a book written about him. It's called Brother Lawrence Practicing the Presence of God. और एक बुक उनके नाम पे लिखी गई है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई लॉरेंस जो परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करते हैं। He lived about 500-600 years back. वो 500 या 600 साल पहले जिए हैं। Ordinary person with an extraordinary life. और साधारण सा एक मनुष्य जो असाधारण जीवन जिया। That is how God takes very, very ordinary people who are humble in heart and humbles them so that He can use them. इसलिए परमेश्वर जो है साधारण से लोग हैं जो कि नम्र हैं, उनको उठाते ताकि उन्हें इस्तेमाल करें। He has no use for all these proud people and educated people who are very clever and who show off. और जो पढ़े लिखे होते हैं, घमंडी लोग होते हैं जो कि बहुत ही चतुर होते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है परमेश्वर को। We admire people who are handsome, can speak well, who can sing well. हम ऐसे लोगों को सराहते हैं जो दिखने में बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे से गीत गा पाते हैं, बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं। As God told Samuel, God looks at the heart. He doesn't look at the outer experience, जैसे कि outer appearance. जैसे कि परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि परमेश्वर जो है हृदय को देखता है, बाहरी रूप को नहीं देखता। I was thinking recently about when Jesus came into this world, was born into this world. मैं हाल ही में सोच रहा था जब यीशु मसीह दुनिया में आए, दुनिया में जन्म लिया। I repeated many times. I said hardly 10 or 12 people knew that He was the Son of God. मैंने कई बार ये दोहराया है, हो सकता है 10 या 12 लोग ही थे जो जान पाए कि परमेश्वर का पुत्र है। He kept it as a top secret. वो बहुत ही बड़े रहस्य के रूप में आए। Who are the people who knew about Him? और कौन लोग थे जो जानते थे कि वो कौन है? Mary knew, Joseph knew,
मरियम को पता था, यूसुफ को पता था, Their relative Elizabeth and Zacharias knew. They were old people. उनके जो रिश्तेदार थे एलिजाबेथ और जकरिया को पता था। Who else knew? उसके अलावा The shepherds, poor shepherds. जो गरीब चरवाहे थे उनको पता था। The angels, God spoke. Angels spoke to them, showed such a wonderful vision, and they heard a song from heaven. और जो स्वर्गदूत हैं वो स्वर्ग में से उतरे थे, उनसे बातें करने लगे, उनके द्वारा उनको पता चला। And 3 foreign people who are there, 3, they said, why not 3? We are some wise men. God told them, some foreigners, see, my son is born here. You come. और कुछ जो विदेशी विज्ञानी थे उनको पता चला कि परमेश्वर की यहाँ पे जन्मा है, तुम जाके देखो। And there are another 2 old people. और उसके भी 2 और बुजुर्ग लोग थे। Simeon and Anna. Anna was an old lady, but she really prayed to God, and God told her, one day you will see my son. और वो एक बूढ़ी स्त्री थी अन्ना, वो बहुत ही प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम मेरे पुत्र को एक दिन देखोगे। There are thousands and thousands of God-fearing people who are reading the Bible, and even the preachers and the teachers, God did not tell them at all. हजारों हजारों बाइबल के पढ़ते थे, जो बाइबल को पढ़ते थे, सब सिखाते थे, परमेश्वर ने उनसे कुछ भी नहीं कहा इस विषय में। They had knowledge. Where is Jesus going to be born? Bethlehem. That is Bethlehem. They knew. और उनको पता था कि यीशु मसीह कहाँ जन्म लेने वाला है, बethlehem में। God said, you have the knowledge, but you will not have revelation. परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पास ज्ञान तो रहेगा, परंतु प्रकटीकरण नहीं रहेगा। If we work with God in our different trials of life, God will give us revelation. अगर हमारे जीवन के अलग-अलग परीक्षाओं में होकर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर हमें प्रकाश देगा। Yeah, this is the way of God. This is how God works. ये परमेश्वर का मार्ग है, ऐसे ही परमेश्वर काम करते हैं। I know God. मैं प्रभु को जानता हूँ। I talk to him. He talks to me. मैं उससे बात करता हूँ, वो मुझसे बात करते हैं। There are many people, Jesus said, who come on the last day and say, Lord, I did this to you, I did prophesy, I did this miracle, I did this to you. और यीशु मसीह ने कहा कि आखिरी दिन में बहुत सारे लोग आके कहेंगे कि प्रभु काम मैंने आपके लिए ये किया, वो किया, परमेश्वर ने बहुत सारे प्रचार किए। But Jesus tell them, I never knew you. प्रभु यीशु मसीह उनसे कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। You did a lot of things in my name. मेरे नाम से बहुत सारे काम तुमने किए हैं। But you never had fellowship with me. पर तो मेरे साथ कोई संगति नहीं। See, we can do a lot of work for the Lord and do this and that and preach and teach and write books and do lots of things. देखो हम परमेश्वर के लिए बहुत सारी सेवकाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, अलग-अलग कामों को कर सकते हैं। But to know a person, we have to talk to him and he has talk to me. पर जो हमें जो ऐसे व्यक्ति बनना है जो मुझसे बात करते हैं कि वो हमसे बात करें। We can say, I know the richest person in India. I know he stays in Bombay. I know him. I've seen his photo. हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, मैं जानता हूँ, वो मुंबई में रहता है, मैंने उसका चित्र जो है वो देखा है। Yeah, I'm very proud that he stays in our city. और मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि वो मेरे ही शहर में रहता है। But does he know you personally? परंतु क्या वो तुम्हें व्यक्तिगत रूप से जानता है? He can boast, he's there. He doesn't know you. हम तो कमेंट कर सकते हैं कि हाँ इधर ही है वो, परंतु वो तुम्हें नहीं जानता। And the wonderful news that you and I can know our Lord Jesus Christ in a much more intimate way than we have known before. और बहुत ही अच्छी खबर ये है कि प्रभु यीशु मसीह को और भी बहुत करीबी से हम जानते हैं, पहले हम जब जानते नहीं थे उससे कहीं करीब। And that comes through all the different trials and problems that come across our way. और ये तभी होता है जब हमारे जीवन में अलग-अलग तरह की परेशानियां और जो परीक्षाएं हैं उसमें होकर गुजरते हैं। That is the most important thing. वो सबसे जरूरी बात है। Other things also are good enough, like reading the Bible, praying, and all that, coming for meetings. But the most important thing that God we grow is when we go through different types of problems in our own life. बाकी भी चीजें अच्छी है, जैसे कि प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, सभा में आना, परंतु हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम जब परेशानियों से होकर गुजर कर परमेश्वर में बढ़ते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। And when does that start? वो कब शुरू होता है? It starts soon after we leave the meeting. और ये तभी शुरू होता है जब हम कलीसिया छोड़ते हैं। After we start the meeting, that is the most important time. The most important time is not the meeting, but after the meeting we face this problem, that problem, all sorts of problems. और जो सभा में जो होते हैं हम, वो महत्वपूर्ण समय नहीं होता है। महत्वपूर्ण समय तब होता है सभा के बाद जब हम सारे प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं। Are we facing the trials right now? क्या हमें कोई परेशानी हो रही अभी इसी वक्त? Some people may be facing. कुछ लोगों को होती होगी। Some small children may be harassing their mothers. और कुछ छोटे बच्चे हैं जो अपने मम्मी को परेशान They are करते not हैं। keeping quiet at all. वो कुछ
चुप भी नहीं The बैठे mothers are saying, "I what to do with this child? This child is keeping irritating me." और माँ कह रही है कि बच्चे के साथ मैं क्या करूं, बहुत सता रहा है। So that may be a very small problem. तो वो तो बहुत छोटी सी परेशानी है And the devil tries to instigate some small children to make a noise. और शैतान जो है उकसाते रहते हैं छोटे बच्चों को कि वो आवाज करे, But the presence of God is here in the meeting, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति सभा में है and the devil cannot enter here. और शैतान यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाता। But soon as we go out of there, the devil is waiting. Abhi humko, we are going to show you properly. I'm going to do some trials to you. और जैसे ही सभा होकर हम वापस लौटते हैं तो शैतान हमारा इंतजार करता है कि कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूं परेशानियों के साथ। While you're driving on the road, somebody will do some foolish thing, and some bike will come inside, and somebody will do this, and you're tempted to lose your temper. और जब आप रोड पे गाड़ी चलाते हो तो कोई भी बेवकूफी करके कुछ भी कर देता है और आप जो है उस इंसिडेंट के कारण, घटना के कारण गुस्से में आ जाते हैं। But we are prepared now. Say, Lord, when that thing comes, I say, Hallelujah, praise the Lord. और हम जो है कहेंगे कि जो भी हो जाए तब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हालेलुया करेंगे। Yes, God, and God, instead of saying hi, we'll say Hallelujah. और हाय हाय कहने की बजाय हम हालेलुया कहेंगे। And God will change us. और परमेश्वर हमें बदलेंगे। It will take time. समय लगता है। If you fall 10 times, it's okay. अगर आप 10 बार भी गिरते हो तो भी ठीक If you है। fall 1,000 times also, it's okay. अगर 1000 बार भी गिरते हो तो But भी don't stay there. परंतु वहां पे पड़े मत रहो। Get up like a rubber ball. Get up. वहां पे कहीं रबर बॉल की तरह उठो वहां से। God has not called us to fall down and be in the gutter. Was called come to be in the heavenly places and fellowship with the Lord. परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया इसलिए कि हम गटर पे पड़े रहे, वहीं पे बैठे रहे, परंतु स्वर्गीय स्थानों की ओर जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के लिए। Something wrong is going to happen in the home. और कुछ तो गलत घर में होने वाला है। Something wrong is going to happen in your office. आपके दफ्तर में कुछ गलत होने वाला है। Many times when I was in the office, I said, "No, last 2-3 days, very nice. Everything is peaceful." और कई बार मैं दफ्तर में होता तो मैं कहता है कि 2-3 दिन से तो सब कुछ अच्छा है, अच्छा चल रहा है। So everything is very good, very nice. मैं कहता था कि बहुत ही अच्छा चल रहा है अभी तो। Suddenly the unit people will come say, "Jindabad, Murdabad, Mar jao, ye wo." Start shouting, coming into a room and doing those things. और अचानक से जो यूनिट के लोग हैं वो आकर बहुत सारा विद्रोह करने लग जाते हैं ऑफिस में आकर। Then we have to be on the alert. Say, Lord, whatever comes, God will be grace. Give me grace in that situation. और हमें बहुत ही सतर्क रहना और कहना है कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे उस परिस्थिति में अनुग्रह दीजिए। 1 Corinthians chapter 11 it says, God will not send us temptations that are too difficult for us to bear. और पहला तो में क्या कहते हैं लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे जीवन में इतनी सा बड़ी परीक्षाओं को नहीं भेजेगा जो हमारे सहने से बाहर हो। Mature people will get tougher problems. जो परिपक्व लोग हैं उन्हें और भी कठिन परीक्षाएं If you're immature, God will give you smaller problems. अगर आप परिपक्व नहीं है तो छोटी परेशानी I was saying to the Apostle Paul how much he was beaten on in Philippi. Blood was going through. Sometimes people was just thrown into the dump. God allowed him to go through all those problems. लेकिन पौलुस प्रेरित को उनको कितनी बड़ी परेशानियां हुई, लोगों ने उनको मारा, उनके शरीर में से खून बहता था, में उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा सतावट लोगों से। And he said, Lord, I'm going to die. I know I may die now. और वो कहने लगा कि प्रभु मैं अभी हो सकता है कि मर जाऊं, मुझे नहीं पता क्या। But God lifted him up. परंतु परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। He could give him a song of praise into his heart and the mouth. और उनके मन में परमेश्वर ने स्तुति का गीत किया, उसमें से बाहर निकल। And that was the true worship. Paul and Silas worshiped God, and God blessed that place, and the earthquake came, and the jailer got converted. और पौलुस ने शिलास ने वहां पे परमेश्वर की सच्ची आराधना महिमा की और भूकंप आया और जेलर के द्वारा उनको आजादी मिली। So, my dear brothers and sisters, in these situations of life, God will teach us to praise Him. Where once we used to grumble, complain. और भाइयों बहनों ये हमारे जीवन की ये परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर हमें जो है सिखाएंगे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना, जबकि पहले हम कुटलाई करते थे और शिकायत करते थे। Our natural habit is to complain. हमारा जो स्वभाव ऐसा है कि हमेशा शिकायत करें। Earlier we used to curse and say bad words, but that is all things have gone. और पहले हम जो क्या करते थे, शाब्दिक बातें कहते थे, बुरा कहते थे, पर वो अब तक कुछ जा चुका है। But now this complaining and fault finding will become less and less, and we will start thanking and praising God. पर आपकी शिकायत करना और दूसरों पर दोष लगाना ये सब कुछ जो है कम होता जाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ज्यादा। Because we know Romans 8:28 says all things are working together for good for those who love God. और क्योंकि हम जानते हैं रोमियो 8:28 वचन में भी जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है उनके लिए सारी चीजें मिलकर बनाई हुई हैं। God has allowed those things. परमेश्वर ने सारी चीजों की अनुमति दी है। Lord, I don't understand, but thank you, Lord, that you will help me to praise you in this situation. परमेश्वर मुझे तो समझ में नहीं आता, परंतु प्रभु मैं आपको धन्यवाद
Even if I complain and murmur, the Lord will change my life. I say, Lord, help me not to do it again. Please fill me with your Holy Spirit. अगर मैं गड़बड़ करूं या तो फिर शिकायत ही करूं और परमेश्वर से प्रार्थना करूं कि प्रभु ये जब मैं करना नहीं चाहता मेरे जीवन को बदल दो तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने में सहायता And करें। the inner life will be more filled with the love of God and will become better and as good or better than our outer life. और हमारा जो अंदरूनी जीवन है परमेश्वर के प्रेम से भर जाएगा और हमारा अंदरूनी जीवन बाहरी जीवन से शुद्ध होगा अच्छा होगा। My dear brothers and sisters, we must take much more greater heed to our personal life. तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है उस पर हमारा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। Let us not be like the people around us who say it doesn't matter, outer life is more important. और हमें हमारे आसपास के लोगों के समान नहीं होना चाहिए जो कहते हैं कि कोई बात नहीं जो बाहरी जीवन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। Inner life is when we see a wrong things in our life, let us change. हमारे अंदरूनी जीवन में जब भी हम गलत काम को देखते हैं तो हमें इसे बदल दें। We must not be people that what to do, brother, I am like this only. हमें ऐसे लोग नहीं बनना चाहिए जो कहते हैं कि प्रभु क्या करूं मैं ऐसा ही हूं मैं। My father used to use a temper. My grandfather also used to use the temper. और मेरे जो पिताजी हैं उनको भी गुस्सा आता था और मेरे बड़े पिताजी उनको भी गुस्सा आता था। No, they were under the control of the devil, but now God has given us the Holy Spirit, we can change. और वो शैतान के नियंत्रण में है परंतु अभी भी आत्मा आत्मा दिया हुआ है तो हम बदल सकते So हैं। little repentance every day, when we do it, we will change. और प्रतिदिन जब पश्चाताप करते जाएंगे तो हम बदल जाएंगे। I had a friend of mine मेरा एक मित्र था in my workplace. मेरे काम की जगह पर। He said, George, I know I'm a hypocrite. वो कहते हैं कि मैं जॉर्ज जानता हूँ कि मैं पाखंडी हूँ। But he said, it's okay. वो कहते हैं कि नहीं आपसे ठीक है। Double life is okay for me. ये जो दोहरा जीवन है मेरे लिए तो ठीक है। This not his policy. One day to show outer life, I don't want to change. I know I'm a hypocrite. I'm saying one thing, I'm not doing it. और उसने कहा कि मैं एक समय पर अच्छा बाहरी जीवन आनंद देखता हूँ दूसरा तो मेरे लिए तो ठीक है कि मैं तो सुरक्षित हूँ ऐसे। See, God hates hypocrites. That's why God said, Pharisees, you're going straight to hell. और परमेश्वर जो है पाखंडियों से नफरत करता है इसलिए परमेश्वर ने फरीसियों को कहा कि तुम सीधा नरक में जाओगे। God wants us to cleanse our heart, and Pharisees also told, please clean your heart, then the inner outer life also will be clean. और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा अंदरूनी जीवन हम शुद्ध रखें। फरीसियों को भी उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदरूनी जीवन को शुद्ध रखो तुम्हारा बाहरी जीवन भी अच्छा होगा। So we worship and praise God that God is doing a work by the Holy Spirit through different trials, and He's always with us. और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद हम करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा अलग-अलग परिस्थितियों के द्वारा परीक्षाओं के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम को करते हैं। And we pray for one another. That's how we come for fellowship. और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं इसलिए हम संगति में आए हैं। So we can uphold one another in prayer when we are out also. और हम बाहर होते हैं तभी भी एक दूसरे को प्रार्थना में लेकर चल सकते हैं। Because all of us tend to give up when our hardships come. और कई बार ऐसा होता है कि हम ये हमारे जीवन में कठिन समय आता है। Brother, sister, take courage. हमें कहना है भाई बहन या बांधो। As it says in the song, प्यारो brother, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो. और जैसे कि गीत में लिखा हुआ है वैसे। So the children also will say, हिम्मत बांधो. और हमारे बच्चों को भी हम कहेंगे कि हिम्मत बांधो। Don't give up. याद नहीं छोड़ो। As they say in Hindi, डरेगा तो मरेगा. We will get, you fear, devil wants to put fear in our life, then you will spiritually also die. और शैतान जब आपके मन में भय को डालेगा तो आपकी भूख में भी मृत्यु पाएंगे। God has taken us through so many troubles so far. और परमेश्वर हमें बहुत सारी परीक्षाओं से होकर अब लेके आए हैं यहाँ तक। He will not leave us. वो हमें छोड़ेंगे नहीं। He will take us till the last day of our life. We will have problems. हमारे जीवन के अंतिम दिन तक परेशानियां होने ही वाली हैं। But God is there with us. और तो परमेश्वर हमारे साथ है। And that's why we can praise Him and say, Lord, thank you, Lord, you have taken me all these years of my life. I don't want to give up now. इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति करके बात करेंगे और कहेंगे प्रभु ये सारे सालों में आपने मुझे यहाँ तक लाया है मैं अभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा ये आप नहीं छोड़ूंगा। And God Almighty, who sees everything from heaven, can control every human being. और परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो है सब कुछ दिख रहा है और सबका नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में ही है। Every circumstance, every result is in His hand. सारे परिणाम सारी परिस्थिति है परमेश्वर के हाथों में। So we worship our great and mighty God, who is the ruler of heaven and earth. और हम परमेश्वर हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है उसकी हम धन्यवाद करते हैं। And He's our loving heavenly Father and Savior. और वो हमारे स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर है हमारे उद्धार करता है। Amen.
Here, Brother Rathaswamy shared, and then Brother Raju shared. Let's see others are there. They can also share. I thank God for today's encouraging words. आज के प्रोत्साहित वचन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। Trials are necessary in our Christian life. हमारे मसीही जीवन में जो परीक्षाएं होती हैं वो बहुत ही जरूरी है। Zach always asked this question. भाई जैक ने हमेशा ये सवाल की है, How many parents do not want their children don't want exams? और कितने माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो है कोई भी परीक्षा ना दे। So no parents wants their children don't want exam. कोई भी माता पिता ये नहीं कहता कि उनके बच्चों को कोई परीक्षा ना दे। You see, even school also, unit, second unit, staff, like this annual exams are there. हम स्कूल में भी देखते हैं कि यूनिट टेस्ट होते हैं या फिर सेमेस्टर टेस्ट होते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं होती रहती है। After the exams, children and parents are so excited. और परीक्षा के बाद जो है माता पिता और बच्चे जो है बहुत ही उत्सुक रहते हैं। Every exams takes the students or children to next level. हर एक परीक्षा जो है बच्चों को जो है दूसरी पड़ाव की ओर लेके जाता है। Like this, in our Christian life, every trials, every sufferings takes us to the next level. हमारे मसीही जीवन में भी वैसे ही हर एक परेशानियां, हर एक परीक्षाएं जो है हमें दूसरे स्तर तक लेके जाती है। So God allows trials and tests. इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को और जांचने की बातों की अनुमति देते हैं। Jesus told us that in this world you have tribulations. परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया में तुम्हें बहुत सारी परेशानियां होंगी। But be of good cheer, I have overcome the world. परंतु अच्छी बात यह है कि मैंने दुनिया को जीत लिया है। God disciplines those who love Him. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनको परमेश्वर अनुशासित करते हैं। That is the symbol of God. वही परमेश्वर का जो चिन्ह है। Sorry, symbol of love of God. परमेश्वर का प्रेम का चिन्ह है। If God loves us, definitely He will display us, correct us. अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं जरूर वो हमें ताड़ना देंगे, हमें सुधारेंगे। Acts 14:22 says, प्रेरितों के काम 14 उसका 22वां वचन कहता है, through many tribulations and sufferings we have to enter into the kingdom of God. बहुत सारे क्लेशों से परेशानियों से गुजर कर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। So every tribulation, every sufferings, God will help us. और जितनी भी परेशानी आती है, जितनी भी दुख की बातें आती है, उसमें परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। So if we know God, अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, God is our loving Father. परमेश्वर हमारे प्रेमी पिता हैं। God who created heaven and earth is almighty. जो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है वो सर्वशक्तिमान है। He will not allow temptations or sufferings beyond our ability. वो हमारे जीवन में कोई भी ऐसी परीक्षाओं को अनुमति नहीं देगा जो कि हमारे सहने से बाहर हो। Even we are not faithful, He is faithful. भले हम विश्वासी योग्य नहीं रहते हैं परंतु वो विश्वासी योग्य है। So we have to know God. तो हमें परमेश्वर को जानना है। Knowing God and His Son Jesus Christ is the everlasting life. और परमेश्वर को जानना, उसके पुत्र यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। So Isaiah chapter 1 यशायाह उसका पहला अध्याय verse 3. तीसरा वचन, The ox knows its owner and the donkey its master's tree. But Israel does not know, my people do not consider. बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। You see, donkeys, even donkeys, we say that most foolish animal, that donkey know his master.
गधा जो है हम कह सकते हैं बहुत ही बेवकूफ एक जानवर है, पर वो गधा भी अपने स्वामी को जानता है। We have to ask ourselves that whether we know our God. तो हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर को जानते हैं। So Hosea chapter 4 verse 6. होशे उसके 14 अध्याय के 6 वचन में, My people are destroyed by lack of knowledge. Hosea 4:6. होशे 14 अध्याय उसके 6 वचन में, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। So whether we know God, क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? then what is the meaning of knowing God? परमेश्वर को जानने का अर्थ क्या है? 1 John chapter 2 verse 3. पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 3 वचन, Now by this we know that we know him if we keep his commandments. यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। So if we say we know God, we will keep his commandments. अगर हम ये कहें कि हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। Jesus told, if you love me, obey my commandments. यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। So if we know God, our life will change. अगर हम परमेश्वर को जानेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। So change is immediate, will not take us to perfection. और जो बदलाव है तुरंत हमें सिद्धता की ओर नहीं लेकर जाएगा। Every day change will be there, it leads us to the perfection. और प्रतिदिन हम बदलते जाएंगे तो वो हमें सिद्धता की ओर लेके जाएगा। Paul also told, I am not perfected, but I am pressing on towards perfection. और पौलुस ने भी कहा कि मैं तो सिद्ध नहीं हूँ परंतु मैं सिद्ध बनने के लिए जोर देकर आगे बढ़ रहा हूँ। So my dear brothers and sisters, I encourage to know God. इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ परमेश्वर को जानने के लिए। Love God and His word. परमेश्वर से प्रेम रखें, उसके वचनों से प्रेम रखें। Respect God and His word. परमेश्वर की आदर करें, परमेश्वर की वचनों की आदर करें। Obey His commandments. परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। So we really, this is the time to test us. तो यही एक समय है सच में अपने आप को परखने का। I know God, but still I am getting angry. मैं तो परमेश्वर को जानता हूँ फिर भी गुस्सा करने लग जाता हूँ। Last year also I got angry. This year also I am getting angry. पिछले साल भी मैं गुस्सा करता था, इस साल भी मैं गुस्सा करता हूँ। I use my eyes with lust. I see with my eyes with lust. मैं लालसा के साथ अपने आंखों से देखता हूँ। I am telling lies. मैं झूठ बोलता हूँ। I cheat government by not paying proper taxes. मैं गवर्नमेंट को भी धोखा देता हूँ, अपना जो कर है वो ना चुकाते हूँ। As I am wife, I am rebellious against my husband. और मैं जैसे जाती हूँ मेरे पति की ओर मैं विद्रोह करती हूँ। As I am a husband, I cannot love my wife. मैं पति होने के नाते अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर पाता। I cannot forgive my brothers and sisters. मेरे भाई बहन को क्षमा नहीं कर पाता। I don't pray for my brothers and sisters. मेरे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता। I don't encourage my brothers and sisters. मेरे भाई बहनों को प्रोत्साहित नहीं करता। These much things are there in my life. Then how can I say that I know God? इतनी सारी चीजें जब मेरे जीवन में है तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। My dear brothers and sisters, please ask this question. मेरे प्रिय भाइयों बहनों अपने आप से सवाल पूछिए। I want challenge you, my brothers and sisters. मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ प्रिय भाई This बहनों। is not to condemn you. ये आप पर दोष लगाने के लिए I नहीं है। want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। Please repent. पश्चाताप कीजिए। Ask God to give you strength. Ask God to give you strength. परमेश्वर से मांगिए कि वो आपको सामर्थ्य दे। Humble yourself under the mighty hand of God. परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे अपने आप को नम्र कीजिए। He will definitely lift you up. वो जरूर आपको ऊपर उठाएंगे। Praise God. मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने जो प्रोत्साहन दिया उसके लिए बहुत आभारी हूँ। मैं पढ़ना चाहूँगा यिर्मयाह चैप्टर 9 में 23 और 24।
This is what the Lord says, let not the wise boast of their wisdom, or the strong boast of their strength, or the rich boast of their riches, but let the one who boast about this, that they have the understanding to know me, and that I am the Lord who exercise kindness, justice, and righteousness on the earth, for in this I delight. प्रभु ये बता रहे थे कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है। तो प्रभु ने मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे कि मैंने बुद्धिमानों और समझदारों से छिपा के रखा है कुछ चीजें। तो मैं प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। रिसेंटली बहुत सारे मेरी लाइफ में परसिक्यूशन था, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। रिसेंटली मैं जब जहाँ रहता था वहाँ पे पानी का काम कर रहा था, और अचानक कोई व्यक्ति आया, मेरे को रूम में बंद करके बहुत मारा। 1 घंटा तक बहुत डंडे से मारता रहा, और उसके बाद उसने टॉर्चर किया। उसके बाद बहुत सारा बाइबल का वर्सेस भी मुझे बोल के मुझे ऊपर से बीट करता था, स्लैप मारता था। और इवन तभी मुझे मालूम पड़ा कि शैतान नोज द बाइबल वर्सेस, शैतान को बाइबल का वचन पता है, बट उसके पास वो पालन नहीं करता है। तो इसलिए प्रभु ने भी प्रोत्साहन दिया कि हमेशा आज्ञा पालन में तत्पर रहना। और प्रभु प्रभु मुझे ये भी याद दिला रहे थे सिचुएशन में, कम से कम बहुत सारे ऐसे वचन थे जो बाढ़ की तरह प्रभु मुझे वहां पे याद दिला रहे थे कि मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे, सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हें मारेंगे, इवन हो सकता है मेरे नाम के कारण तुम अपनी लाइफ को भी खो दोगे। तो प्रभु ने ये भी एक और बात प्रोत्साहन दिया कि मेरे से ज्यादा तुम अपनी लाइफ से भी प्रेम मत करो, मतलब इवन अपने जीवन को भी प्रेम हमें अपने आप से नहीं करना चाहिए। ये बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए उस सिचुएशन में, लेकिन प्रभु ने मुझे प्रोत्साहन दिया और प्रभु ने बताया कि व्हेन आई एम अफ्रेड आई ट्रस्ट इन यू, जब भी मुझे डर लग गया प्रभु के ऊपर विश्वास करूंगा। तो शैतान उस समय उस व्यक्ति के द्वारा आया था और मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा था, बहुत सारा इवन मैं रात भर बहुत प्यास लगा था, मुझे पानी भी नहीं मिल रहा था। तो क्योंकि उस घर में काम हुआ था तो पानी भी बहुत कोने में रखा था, मैं कैसे कैसे जाके लिया। और वो उस सिचुएशन में प्रभु ने, मुझे मालूम है कि शैतान उधर आया हुआ था और शैतान का स्पिरिट को गॉड ने मुझे पहचानने का परख दिया, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। मैं पेशेंस रहा, 1 घंटा तक प्रभु ने मुझे प्रोत्साहन दिया, एक शब्द भी नहीं बोला मैंने। और उस सिचुएशन में मैंने उनके लिए प्रार्थना भी कर रहा था, उस व्यक्ति के लिए कि प्रभु उनकी आंख खोले, क्योंकि प्रभु ने हमें प्रोत्साहन दिया कि जब शस्त्रों के लिए तो प्रार्थना करो, जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा धन रखा है। तो इन बातों से भी प्रभु हमें प्रोत्साहन देते हैं कि कभी भी घबराना मत, ये सब तो मसीह जीवन में तुम्हारे आते रहेंगे। और इसके पहले भी प्रभु बहुत परसिक्यूशन लाइफ में मेरे आया था। इवन जब मैं नाला सुपारा में व्हेन आई वाज कन्वर्टेड, जब भी मैं प्रभु में आया तभी उस समय भी मुझे ऐसा ही सिचुएशन हुआ था, रूम में बंद करके मुझे मारा गया था डंडे से, एकदम सेम सिचुएशन, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा प्रभु ने ऐसा मेरे साथ किया। तो मुझे मालूम पड़ा परमेश्वर का कुछ योजना है। और प्रभु भी कहते हैं जब तक दाना मर नहीं जाता तब तक फलवंत फल नहीं आएगा। तो इस बातों से मुझे एक प्रोत्साहन दे रहे थे प्रभु कि तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा धन इकट्ठा है। अंत के समय में कठिन समय आएंगे और मनुष्य लोग स्वार्थी, अभिमानी, निंदक और सब प्रकार के अभिलाषा से भर जाएंगे, लेकिन हमारा प्रभु प्रोत्साहन, तुम्हारा डिजायर सिर्फ प्रभु में हो और तुम उनकी इच्छा के अनुसार चलना, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है, आपके समान है। और प्रभु चाहते हैं कि हम उनके साथ संगति में चले। और इवन चेले भी जब प्रभु यीशु के पास पतरस भी जा रहा था तो प्रभु ने बोला क्या तुम मुझे मैं प्रभु मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। तो प्रभु ने बोला तुम मुझे 3 बार इनकार करोगे। तो इस सिचुएशन में भी पतरस को जब एंड में मालूम पड़ा कि सच में मेरा प्रभु के साथ प्रेम जो है सिर्फ शब्दों से था, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें जब ओबे करते हैं तभी प्रभु हमें जानते हैं। मुझे मालूम था कि स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह हमें देख रहे हैं, दाहिने बैठे हुए, वो चाहे तो प्रभु यीशु मसीह टाइम में ऐसे होता था, तो प्रभु ने बोला चाहे तो 12 पलटन का जो एंजल्स था
वो बुला सकते थे, वहाँ डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन गॉड ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि गॉड गॉड इवन परमेश्वर क्रूस पर भी एक चोर को था, उसे भी प्रभु ने बचाया। तो प्रभु हमें बचाएंगे और सहायता करेंगे, और जो परसिक्यूशंस और ट्रायल्स आएंगे वो उसके द्वारा प्रभु कहते हैं कि चलते रहना है, क्योंकि अगर हम पीछे हटेंगे तो शैतान हमारे कब्जे में ले लेगा, और फिर हम अंधकार के द्वारा फिर हम निराश हो जाएंगे और शैतान के जाल में फंस के नरक में जा सकते हैं। तो प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है, तो इसे हम पूरे ढाढ़स के साथ चलते रहे, जैसे जोशुआ 1:9 में क्या है, Have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God be with you wherever you go. तो प्रभु हमारे साथ है, जहाँ कहीं भी जाए तो वो हमें देख रहे। प्रभु की स्तुति हो। आमीन।